Hello students, today we are going to cover two very important theorems of rotational dynamics, and these two theorems are parallel and perpendicular axis theorem. Very important. See, whenever you are given a body and you are asked to find the moment of inertia of that body, then I have already told you that if you want to find moment of inertia of any body, first of all you have to think about the axis about which the moment of inertia is to be found. For example, here I am having an object, it's a used CD, and you are given this CD and you are asked to find the moment of inertia of this CD. Then first of all you have to decide about which axis this CD is going to rotate. So let's say this CD is rotating about this axis. It is rotating like this about this axis. It is rotating like this. Then its formula is mr square by 2, which we have covered in last lecture. It comes in the case of disk. Now this axis was supposed to be passing from its center of mass. ये CD का center of mass है, and from center of mass this axis was passing. So formula was mr square by 2 and you calculated, your answer completed. But what if the axis of rotation is placed here? You are given a situation that axis of rotation is here and this CD is going to revolve around this axis like this. Again it is rotating, but now its orientation is changed. It is rotating like this, like this, like this. It is completely rotating. Now can you use mr square by 2 again, same formula? No. Now the formula will change. Now again, if you are given the axis here and CD is rotating like this, it is rotating like this. Now can you use mr square by 2 again? No, the formula will change. Now the question is, this type of many combinations are possible. How many formula will you remember? Now at this point of time we have to use two types of theorems, and these theorems are going to help you in finding moment of inertia of body about any axis. Conditions apply, you know the moment of inertia about center of mass. When you are using parallel axis theorem, in that axis theorem we will be using moment of inertia about center of mass, so we have to use that. In perpendicular axis theorem there is no requirement as such. So let's start first theorem. After completing the theorem I will be showing some examples and you can easily digest that. So let us start with a very important theorem, and please make the note of this. I hope you are maintaining your notes from first lecture onwards. This chapter is very much important as far as your board exam are concerned or your competitive exams are concerned. Rotational dynamics, rigid body dynamics, rotational motion, whatever you say, it's very important. So I am starting with perpendicular axis theorem. Now first of all let me show you some example or some illustration so that you can easily come to know that what this kind of theorem is all about. Suppose for example there is a body and this body is a plain laminar body. This body is plain laminar body. Laminar body means the thickness of this body with respect to its width is comparative to very small. For example, take the example of the CD. इसका thickness कितना होगा? It is very small comparative to its lateral dimension or its diameter. So we can say it as a laminar body. Okay. तो this kind of body, इस kind of body से हम लोग deal करेंगे इस theorem में, perpendicular axis theorem में. So your body is plain laminar body. Okay, so you should know कि laminar body क्या होती है. Okay.
So let us draw a body, simple body, laminar body. Let us draw a body something like this. It is irregular in shape. It is plain laminar body. Thickness is very small compared to the lateral dimensions. Now let us take three axes. You already know in graph paper, in space we are having three axes, x, y and z. Okay, so let us consider this as our origin. Okay, and one axis will be here like this, another axis will be here like this, perpendicular, and one axis will be here. It will be coming out, it will be perpendicular to these two axes. It will be like this, correct na? But can we draw an axis like this? क्या मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं? No, we are not going to draw like this. So इस particular axis को शो करने के लिए किताबों में, बुक्स में आपको मिलेंगे two notations. What people use, some people use cross like this. Cross का मतलब होता है inside. Some people using dot like this. इसका मतलब होता है outside. And in some of the books, and in fact in your textbook, it's given like this. Okay. ये ऐसा इंक्लाइन बना हुआ है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये ऐसा इंक्लाइंड है. नो, दिस एक्सिस इज लाइक दिस, बट वी कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस, सो वी आर टेकिंग एक्सिस लाइक दिस. ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पक्का? चलो नाम दे देते हैं. लेट अस टेक दिस एक्सिस एज जेड एक्सिस, दिस एक्सिस एज वाई एक्सिस एंड दिस एक्सिस एज एक्स एक्सिस. इतना क्लियर है? ओके, नाउ this complete body's mass is, let us say, m. Mass of lamina is, let us say, capital M. But what I am going to do, we will consider that this body has uniform mass distribution. इस बॉडी का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लास्ट टाइम समझाया था आपको. मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम है. अगर इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास इक्वली थ्रू आउट द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं एक छोटा सा मास डीएम यहां पे कंसीडर करने वाला हूं. व्हाट आई एम गोइंग टू कंसीडर इज अ स्मॉल मास डीएम. वैसे तो बॉडी का कैपिटल मास कितना एम है, लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे? छोटा सा मास डीएम. ठीक है? Okay, now you should recall the formula for moment of inertia. अब तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जितना डिस्कस किया, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. हमने सबसे पहला फॉर्मूला यूज किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज सब्मिशन I इज इक्वल टू 1 to n mi/ri स्क्वायर. करेक्ट? हमने फॉर्मूला यूज किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज नथिंग बट मास टाइम्स रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर. करेक्ट? अच्छा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैं इस तरह से लिखो, I इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड विथ दिस k इज व्हाट? डिस्टेंस. सो आई कैन राइट मल्टीप्लाइड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस का क्या? स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू मास टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर. इतना ठीक है? ओके, नाउ सी हियर, आई एम हैविंग थ्री एक्सेस z, y and x. I will be finding moment of inertia about all three axes. Okay, so let me write, या फिर यहां लिखते हैं, चलो let me write moment of inertia about x axis. अबाउट एक्स एक्सिस. अब देखो एक्स एक्सिस ये वाली है, दिस इज द एक्स एक्सिस. करेक्ट ना? दिस जिसको हमने ऐसा शो किया है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस विल बी दिस मास डीएम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ मास डीएम फ्रॉम दिस एक्सिस. डिस्टेंस ऑफ मास डीएम फ्रॉम दिस एक्सिस. सो लेट अस ड्रॉ डिस्टेंसेस. ये इसका डिस्टेंस होगा यहां से. करेक्ट? डिस्टेंस ऑफ मास डीएम फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस विल बी लाइक दिस.
करेक्ट ना? ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंसेस हमारे सामने है, ये वाला, इन डिस्टेंस को कुछ नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस, इसको मैं मान सकता हूँ स्मॉल एक्स, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा ओरिजिन है, याद रखना, दिस इज आवर ओरिजिन, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, स्मॉल एक्स। ओके, नाउ दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस ऑन वाई एक्सिस, लेट अस टेक दिस एज स्मॉल वाई। अब आप इजीली देख सकते हो, ये आपका पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेलल टू दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। इफ दिस डिस्टेंस इज x, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी x, इफ दिस डिस्टेंस इज y, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी y। इतना ठीक है, पक्का? नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, I x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस को मैंने क्या लिखा, Ix, दैट विल बी इक्वल टू, सुनना ध्यान से, मास dm, मास मेरा क्या है dm मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, इस dm का डिस्टेंस कितना है x से, y, डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन वेट एक मिनट, ये dm इंटू वाई स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मुझे मिलेगा, क्या वो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस है? नहीं। Why? Because I have considered this dm मास। अरे ये बॉडी का मास dm नहीं है, बॉडी का मास तो m है, तो हमने तो dm पे एनालिसिस कर रहे हैं ना, और हमारा एम क्या है, हम dm पे एनालिसिस करें और जो आंसर आए उसको हम पूरी बॉडी पे अप्लाई करें। करेक्ट, हमारे पास छोटा सा मास dm है, उसको पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है, तो छोटी सी चीज को बड़ा करने के लिए क्या किया जाता है मैथ्स में, इंटीग्रेशन। सो यू हैव टू डू इंटीग्रेशन लाइक दिस। ये बात दिमाग में घुसी? अरे हम dm को लेकर एनालिसिस कर रहे थे, हमारा एम dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना नहीं, बॉडी का फाइंड करना है। बॉडी का मास कैपिटल M है, तो dm छोटा मास है, छोटे मास को बड़ा मास करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये सब बातें मैं अभी इसलिए बता रहा हूं इस लेक्चर में, बिकॉज आपका इंटीग्रेशन हुआ नहीं है। मैथ्स में इंटीग्रेशन जब आपका होगा तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, इससे एक बात और समझ में आती है बच्चों, फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा मैथ्स आना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट्स, कैलकुलस वाला पूरा, और उसके बाद आपका वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपको कमांड होगा इन चीजों पे, उतने ही आपको ये सब करने मजा आएगा। सो कम, ये dm इंटू वाई स्क्वायर को क्या मैं वाई स्क्वायर dm लिख सकता हूं? वाई स्क्वायर को पहले लिख देते, dm को बाद में लिख देते, बिल्कुल कर सकते ऐसा, वाई स्क्वायर dm। उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, भाई y एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, लेट इट बी iy। अगेन इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास अपने केस में कितना है, dm, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है, x, इस पे क्या लगा देंगे, x स्क्वायर। अगेन dm इंटू एक्स स्क्वायर को क्या हम x स्क्वायर dm लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो लेट अस राइट x स्क्वायर dm। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस कौन सी है, ये वाली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस विल बी iz इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, z एक्सिस से dm कितना दूर है, इस z एक्सिस से dm कितना दूर है, हमने कोई डिस्टेंस अभी लिया नहीं है। सो लेट अस टेक डिस्टेंस एज r, लेट अस टेक डिस्टेंस एज r। तो क्या लिख सकते हैं, dm इंटू आर स्क्वायर। अगेन दिस dm इंटू आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज r स्क्वायर dm। इतना समझ गए? अब यहां आ जाओ, यहां से थोड़ी सी कहानी शुरू होती। क्या कहानी, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, ओ, इसको नाम दे देते कुछ, लेट अस नेम दिस सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ओ ए, और इसको नाम दे देते इस पॉइंट को बी। मैं लिखता नहीं हूं आगे, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। ओ ए बी, आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ओ ए बी को देखो, ये डिस्टेंस x इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है,
तो अगर ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ऑब्वियसली। और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। दैट मींस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। सो आर स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हमारा डीएम एज इट इज। यहाँ पे रीजन लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन विल बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पूरा लिख लेना आप लोग। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, प्लस साइन बीच में एज इट इज। उसके बाद वाई स्क्वायर डी एम, वाई स्क्वायर डी एम और उसका भी इंटीग्रेशन। अरे ये साइन को कुछ नहीं मैंने सेपरेट किया, एक बार एक्स के साथ एक बार वाई के साथ, और एक्स को मल्टीप्लाई किए डीएम से, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए डीएम से। ऐसा क्यों किए? ध्यान से देखिए। ये एक्स स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन क्या बन गया? एक्स स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन क्या बन गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। वाई स्क्वायर डीएम का इंटीग्रेशन क्या बन गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। बेटर ये रहेगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और यहां पे आप लिख लीजिए फ्रॉम 1 and 2। लेफ्ट साइड पे क्या चलते हुए रहे? आई जेड। फाइनली हमें एक फॉर्मूला मिला, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अरे ये आई वाई प्लस आई एक्स है ना, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। है या ना? समझ में आ गया? बस यहां पे आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनना, बोल रहा क्या हूं। इन योर बोर्ड एग्जाम आपको क्वेश्चन आएगा, राइट द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो सबसे पहला काम आपको इसका क्या लिखना है? स्टेटमेंट। यू हैव टू राइट इट्स स्टेटमेंट। आपका होमवर्क रहेगा, अपनी नोटबुक के अंदर इसका स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट क्या है मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूं, सुनो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस टू इट्स प्लेन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ moment of inertia about two mutually perpendicular axes lying inside the plane of lamina. Conditions apply that these three axes are concurrent. नहीं आया? फिर से सुनो एक बार। ये जो मैं बोल रहा हूं ना बच्चों, ये मैंने रटा नहीं है। पहली बात देखो, अगर मैंने रटा होता ना तो मैं जितनी बार स्टेटमेंट बोलता हर बार मेरा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम होता। मैंने रटा नहीं है। मैंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने है, इस एक्सप्रेशन का यूज करके मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या है? आई जेड। व्हाट इज आई जेड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। अब ये एकदम दिख रहा है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लैमिना। तो हम ऐसा बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनार बॉडी अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू व्हाट? The sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes lying inside the plane of the lamina। इतना हो गया। आगे कंडीशन बताना है। कंडीशन क्या? कंडीशन ये है कि these three axes are concurrent। concurrent मतलब they are intersecting each other। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बॉडी आपको ऐसा गिवन है और एक एक्सिस यहां पे है, दूसरी आपने यहां लिया, तीसरी यहां लिया। ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो काम नहीं चलेगा। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। दिस इज ओनली वैलिड व्हेन दीज थ्री एक्सिस आर intersecting each other at a single common point. So this was all story about perpendicular axis theorem. जरा एक काम करो, स्क्रीन को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद ये सब कॉपी कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो कॉपी हो गया? हो गया कॉपी? अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसका एप्लीकेशन के, इसको हम लोग यूज कहां करेंगे। मैं ये सब रब कर रहा हूं, बात सुनेंगे ध्यान से। यहां पे
सपोज आपको एक बॉडी गिवन है, सपोज यू आर गिवन एन स्क्वायर लाइक दिस, एक स्क्वायर शेप की बॉडी है और इसका जो साइड का जो डायमेंशन है वो है स्मॉल है, इसके साइड कितनी है, स्मॉल है। और अब ये ए वे में लिख रहा, इसकी जरूरत नहीं है, आप ध्यान में रखें द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, आपको गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मैं लिख देता हूं यहां पे आई एक्स है एम ए स्क्वायर बाई 12, ये फॉर्मूला डायरेक्ट, और आई वाई फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको खुद करते आना चाहिए। अभी आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे पता है आपका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। मैथ्स में जब इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट यू कैन इजीली सॉल्व दिस। वैसे मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में करके दिखाया था, किसका, रिंग का। सेम आपको वही करना है। यू हैव टू टेक अ एलिमेंटल पार्ट डीएम ओवर हियर, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 टू a, या फिर 0 टू a/2 या 0 टू a/2, इस तरह इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरी बॉडी का ये फॉर्मूला मिलेगा ma²/12। एनीवे उसी तरह आई वाई आपको गिवन है ma²/12। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज गिवन, यू आर आस्क्ड दैट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। अब क्या करोगे, हम अप्लाई करेंगे ये वाला थ्योरम, बिकॉज वी नो दैट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई विल बी राइटिंग फॉर्मूला आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स कितना, ma²/12, आई वाई कितना, ma²/12। मेक दिस कैपिटल एम, बॉडी का मास वी टेक इट एज कैपिटल एम। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ऐड दिस, ऐड करो, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ma² निकाल लो कॉमन, यहां बचा 1/12 प्लस 1/12, डिनोमिनेटर आपका आ गया कॉमन, 1 + 1 आपका बन जाएगा 2, 2/12 इज 1/6 एंड योर फाइनल आंसर इज ma²/6। बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कुछ भी बॉडी दे देगा आपको, अगर आपको बॉडी के अंदर के कंडीशन सप्लाई, ये जो दो एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो बॉडी के प्लेन के अंदर होना चाहिए। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और आपको परपेंडिकुलर एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। यही चीज अप्लाई करेंगे रिंग के फॉर्म में, डिस्क के फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में, रॉड के फॉर्म में, जहां भी। कोई मुश्किल है, कुछ नहीं। तो ये एग्जांपल साइड में कहीं भी कॉपी कर लो आप अपनी नोटबुक के अंदर, समझने के लिए कि इसका यूज कहां होगा, ताकि जब रियल एप्लीकेशन जब इसके आएंगे तब आपको मजा आएगा करते हुए। सो आई एम गोइंग टू रब दिस एंड we will be moving towards the next theorem, और नेक्स्ट थ्योरम आपका है पैरेलल एक्सिस। ये था बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस, और अब हम जिस थ्योरम को करने जा रहे हैं दैट इज आवर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो हेडिंग डालेंगे सब लोग, क्या हेडिंग डालेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग परपेंडिकुलर आई एम राइटिंग डायरेक्टली हो, ये पैरेलल, आप सेपरेट हेडिंग डालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगेन पहले हम थ्योरम करेंगे, थ्योरम के बाद स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, स्टेटमेंट आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन बताऊंगा। ओके, सो लेट अस टेक अ बॉडी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर रहे हैं। लेट अस टेक अ बॉडी, कैसे बॉडी ले लो, इर्रेगुलर इन शेप लाइक दिस। नाउ सपोज दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास समझते हो, सेंटर ऑफ मास याद है कुछ, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी ऑन विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, दिस इज सेंटर ऑफ मास। उसका फॉर्मूला वगैरह भी हम 11th में पढ़ चुके हैं। प्लीज जिन लोगों ने 11th में सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा, प्लीज जाके उसको एक बार पढ़ लो, क्योंकि उसका यूज इस थ्योरम में होगा। हम लोग फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास m1 r1 plus m2 r2 m3 r3 m4 r4 mn rn divided by capital mass, capital M मतलब total mass of the body, and we used to get center of mass. So this is center of mass. यहाँ हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है।
इसी सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक और एक्सिस ले लेते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज C and let us take this point as O and let us have an axis on point O as well. ये हमारा क्या है बच्चों? पॉइंट O. ठीक है. Like in the previous case, again here we are going to consider a point and we will be considering that the mass is dm over here. या छोटा मास dm है, इसको लेके इंटीग्रेट करेंगे और पूरी बॉडी का हम लोग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अबाउट दिस एक्सिस. अभी आप जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाओ. लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज h. ओके, लेट अस ज्वाइन दिस. ये हम लोगों ने ज्वाइन किया. ये पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था. करेक्ट. हमारा मोटिव क्या है? मोटिव इज टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस IO. मान लेते हैं ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास IC है. कितना है? IC. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इज लेट अस टेक IO. कितना लेते हैं हम लोग? IO. हमारा मोटिव है IO फाइंड करना इन द फॉर्म ऑफ IC. IO फाइंड करना है सच दैट उसके फॉर्मूले में कौन आना चाहिए? IC. ये हमारा मोटिव है. वी हैव टू फाइंड दैट. करेक्ट ना? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. सो आई विल बी राइटिंग. लेट अस ड्रॉ लाइन लाइक दिस. वी विल बी डूइंग सम मैथमेटिक्स ओवर हियर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया about this axis. इस एक्सिस का कुछ नाम दे देंगे हम लोग. लेट अस टेक द नेम ऑफ दिस एक्सिस एज A एंड दिस एक्सिस एज B. क्लियर है? ये मैंने एक्सिस का नाम दिया बच्चों. व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन द नेम ऑफ द एक्सिस ताकि मैं यहां पे लिख सकूं. वरना आप ऐसा भी लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through O. You can write like this. You can write like this, moment of inertia about an axis passing through O, but I will writing about A. Whatever you like. So moment of inertia about this axis IO is equal to, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. मास कौन सा है हमारे पास? dm मास है. इनटू डिस्टेंस कितना है dm का? यहां से कितना है? लेट अस टेक दिस पॉइंट एज D. तो डिस्टेंस क्या बन गया? OD. तो आई बी राइटिंग OD स्क्वायर. लेकिन अगेन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो छोटे मास का. ये बॉडी सिर्फ dm से नहीं बनी हुई है, ये बॉडी बनी हुई है m से. इस बॉडी का टोटल मास कितना है? कैपिटल M. दिस इज द मास ऑफ द बॉडी. सो दैट इज वाई पूरे के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन. अब अगेन ये dm OD स्क्वायर है. लेट अस राइट OD स्क्वायर dm. OD स्क्वायर और dm. ठीक है इतना. नाउ कम, क्या ये OD स्क्वायर को अगर मैं यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, देखो यहां पे आई हैव कंस्ट्रक्टेड टू लाइंस लाइक दिस सच दैट दिस इज परपेंडिकुलर. ओके, और इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं. इसको क्या नाम देवे? ABCDO यूज कर लिए, E नाम दे देते हैं. या लेट अस टेक P ले लो. ठीक है, कोई दिक्कत है? या कुछ और ले लो. अरे नाम में क्या रखा है? आपकी टेक्स्ट बुक में वैसे N यूज किया आई थिंक. तो वट एवर इट इज आप N यूज कर लेना. चलो N यूज कर लेते हैं. ना आप बोलोगे सर ये पता नहीं कहां से पढ़ा रहे हो आप. ओके, सी हियर, ये जो OD स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर. हाया ना? अभी पिछले थ्योरम में पाइथागोरस यूज किए. OD स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग OD आई एम राइटिंग ON प्लस ND स्क्वायर और यहां पे मेरा DM एज इट इज कॉपी. ठीक है. अगेन you can see ON is combination of OC and CN.
सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ON की जगह पे क्या मैं पुट कर सकता हूं, OC प्लस CN, करेक्ट। सो ON की जगह मैंने रखा OC प्लस CN। अब ON पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां पे भी हम लोग क्या डाल देंगे, होल स्क्वायर, प्लस हमारा ND स्क्वायर एज इट इज, और फिर बाहर DM एज इट इज। समझ में आया? अरे ON की जगह उसकी वैल्यू रखे, ND को एज इट इज कॉपी किए, DM को वहां उसके यहाँ पे रख दिए। नाउ यू कैन सी A प्लस बी द होल स्क्वायर, A प्लस बी द होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म एज इट इज कॉपी, और बाहर हमारा DM एज इट इज कॉपी, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज। दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, दिस इज नॉट फिजिक्स। फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया था, यहीं पे फिजिक्स खत्म। इंटीग्रेशन OD स्क्वायर DM करो, खत्म, आपको पूरा मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। सो प्लीज मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा मैथ्स में अपना ग्रिप रखो। अब आ जाते हैं यहां पे, यू कैन सी CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, क्या उसकी जगह पे CD स्क्वायर लिखा जा सकता है? अगेन पाइथागोरस, क्या बोलना चाह रहे हैं हम, दिस CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, उसकी जगह पे लिख सकते हैं हम CD स्क्वायर। पाइथागोरस, CD स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, हाँ या ना? सो लेट अस राइट दैट इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN प्लस CD स्क्वायर, और यहां पे बाहर क्या आ जाएगा, DM। अब DM को सबके साथ सेपरेट सेपरेट लिखते हैं हम, चलिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखते पहले CD स्क्वायर DM, CD स्क्वायर DM लिखते हैं हम लोग, CD स्क्वायर एंड DM, करेक्ट है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सुनो, जो टर्म कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। ओके, तो यहां मेरे पास 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ OC इंटू CN इंटू DM। ठीक है, वो अलग बात है, हमारा जो OC है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यू रखेंगे, तब हम लोग उसको ले लेंगे। चलिए, अब सबकी जगह सबका वैल्यू रखो। OC स्क्वायर, देखो बच्चों, OC को मैंने क्या माना था, H, OC को क्या माना था हमने, H। तो यहां पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या ये H बदलेगा या कांस्टेंट है? डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सेस कांस्टेंट है, तो हम बाहर ले लेते हैं OC स्क्वायर को, और बाहर लोगे OC स्क्वायर को, लेकिन OC स्क्वायर को माना गया है H, इसीलिए आप यहां पे लिखेंगे H स्क्वायर, और अंडर क्या बचा, DM। इतना समझ गया? ओके। CD स्क्वायर DM, बच्चों ध्यान से देखना, CD स्क्वायर DM, व्हाट इज दैट? व्हाट इज CD स्क्वायर DM? इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में आपके इजी होने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी IC, विच इज इक्वल टू CD स्क्वायर इंटू DM का इंटीग्रेशन। सो दिस CD स्क्वायर DM की जगह हम डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, IC, क्या पुट करेंगे, IC प्लस 2 OC, OC की जगह H रख दो, और H कांस्टेंट है तो क्या बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, CN इंटू DM, CN इंटू DM। अब सुनो, यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दिस IC, इसको पहले लिख दो IC प्लस, बच्चों DM का इंटीग्रेशन क्या होगा, DM छोटा मास है, इंटीग्रेशन मतलब सारा मास। मैं अगर सारे DM को जमा कर दूं तो क्या मुझे कैपिटल मास M मिल जाएगा? वेरी सिंपल। सो इंटीग्रेशन ऑफ DM इज कैपिटल M एंड H स्क्वायर एज इट इज, साथ में आ गया। देखो पहले मैंने IC को लिखा, DM का इंटीग्रेशन M लिख दिया, और H स्क्वायर को H स्क्वायर का एज इट इज कॉपी कर दिया, साथ में 2H और C एंड DM भी आ रहा है। अब आपको जो समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये समझना है C एंड DM की कहानी।
CNDM इंटीग्रेशन की कहानी। क्या कहानी, सुनो यहां पे, मैं यहां पे कहीं एक्सप्लेन करता हूं आपको। बात यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ CNDM इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ CNDM इज इक्वल टू 0। सर 0 क्यों? थोड़ा पीछे जाओ 11th स्टैंडर्ड में और जाके सेंटर ऑफ मास को रिवाइज करो। हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा हुआ है कि द मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अरे ये जो CN है, ये जो CN है, ये C क्या है आपका? सेंटर ऑफ मास। मतलब हमने डिस्टेंस कहां से लिया है? वी हैव टेकन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ओनली। और सेंटर ऑफ मास से अगर मैं डिस्टेंस लूं और उसको जमा करूं, यानी एक मास m, दूसरा मास m2, m3, m4, m5, m6, तो अगर मैं सारे मासेस को लूं और सारे मास का मोमेंट ऑफ मास फाइंड करूं, यानी सेंटर ऑफ मास फाइंड करूं, तो मुझे यही पॉइंट मिलेगा ना। अरे आई विल बी गेटिंग दिस पॉइंट ओनली, एंड दिस पॉइंट वी हैव कंसिडर्ड इट एज एन ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, एंड दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ CNDM इज 0। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे, अगर आपको सेंटर ऑफ मास याद है तो प्लीज, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा हुआ है प्लीज, या अगर पढ़ा भी हुआ है भूल गए हो आप, तो जाके एक बार रिवाइज कर दो। बाय द वे इतना याद रखना काफी है, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0। इसको और भी समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ CNDM डिवाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय m। नाउ दिस ऑल टर्म, ये वाला टर्म मेरा बन जाएगा 0, m इंटू 0, फाइनल आंसर इज 0। देयर आर मेनी मेथड्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट अगेन वन थिंग कम्स, you should know that what is center of mass and what are the expressions to find that। अगर वही बेसिक आपको नहीं पता है तो जितने भी तरीके से मैं आपको समझा लूँ भारी पड़ेगा आपको। बात समझ आ गई है? सो दिस इज सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास से हमने DM लिया, डिस्टेंस लिया, और उसका हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। बॉडी सिमेट्रिक होती है अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड दैट इज व्हाई दिस इंटीग्रेशन इज 0। नाउ 0 मल्टीप्लाइड बाय 2h, 0। योर फाइनल आंसर इज, यहां पे लेफ्ट साइड में क्या चलते हुए आ रहा है? IO। फाइनल आंसर इज IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। योर आंसर इज कंप्लीट। दिस वॉज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच वॉज आवर मोटिव टू फाइंड। आई थिंक बात एग्जैक्टली क्लियर है, समझ गए यहां तक? कोई डाउट है? अब स्टेटमेंट में आते हैं। एग्जाम में आएगा राइट द स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे? सुनो यहां पे, यू विल बी राइटिंग लाइक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, about a parallel axis passing through center of mass, and product of mass and square of perpendicular distance between them। फिर से एक बार सुन लो, the moment of, मैंने रटा नहीं है, फिर से एक बार बोल देता हूं, मैंने रटा नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा और स्टेटमेंट बना दिया। कैसे? the moment of inertia of a body about an axis is equal to the sum of moment of inertia of a body about an axis passing through center of mass, about a parallel axis passing through center of mass, and product of mass of the body and square of the distance between two axes। दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, वहां से भी आप लिख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट स्टेटमेंट, आफ्टर दैट यू हैव टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। सो स्क्रीन को पॉज करो, स्टेटमेंट लिखो, एक्सप्रेशन को डिराइव करो, और फिर मैं भी आपको बताता हूँ एक एप्लीकेशन के कहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे। जरा इसको फटाफट कॉपी करो। हो गया कॉपी? कंप्लीटेड, कॉपी हो गया है। एप्लीकेशन करें। सो लेट्स डू सम एप्लीकेशंस। देख लेते हैं कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो लेट मी गिव यू अ बॉडी लाइक दिस। मान लो, या आप यही ले लो ना,
this is the body and the moment of inertia about this axis passing through center of mass is let's say mr square by 2. कितना है? mr square by 2. तो ये एक्सिस को मैं ऐसे शो कर रहा हूं क्रॉस मार्क से. क्रॉस मतलब ये एक्सिस ऐसे है, ठीक है. वैसे तो क्रॉस यूज किया जाता है इनसाइड के लिए. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज लेट्स से mr स्क्वायर बाय 2. आपको बोला गया कि फाइंड कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यानी ये CD ऐसे घूम रही है इस एक्सिस के अराउंड में, ऐसे 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 ऐसे. आर यू गेटिंग मी? इट इज रिवॉल्विंग लाइक दिस अबाउट दिस एक्सिस. अब देखिए, एक तो ये एक्सिस जो आपको गिवन थी ये, और एक दूसरी ये एक्सिस जो आपको दी जा रही है यहाँ पे. क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल है कि नहीं पैरेलल? तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं. बिल्कुल सर यूज कर सकते हैं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जिस एक्सिस के अराउंड फाइंड करना है, लेट्स से मेरा O है, मुझे इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. जिस एक्सिस के अराउंड फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाओ IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. सही है, चलो यूज करते हैं. IC कितना गिवन है मुझे? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस m एज इट इज. बच्चों यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? कैन यू टेल? ऑब्वियसली दिस इज द रेडियस ऑफ द डिस्क. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ द डिस्क. तो h की जगह मैंने क्या लिख दिया? r स्क्वायर. mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर कितना हो गया? 3 बाय 2 mr स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस कर दो, सो यू विल बी गेटिंग 3 mr स्क्वायर बाई 2. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O. बात समझ आ गई अच्छे से? अब अगर और अच्छा क्वेश्चन बनाना तो क्या कर सकते हैं ये लोग? आपको ऐसी सिचुएशन दे देंगे कि आपको दोनों ही थ्योरम यूज करने पड़ जाए. आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी यूज करना पड़ जाए, आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यूज करना पड़ जाए. अरे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? बस अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट फाइंड करना है. फिजिक्स में डरना नहीं कभी भी, ठीक है. चलिए, तो 2 मिनट आपको देता हूं. 2 मिनट ऑब्वियसली यहां के लिए, वरना तो आप पॉज करके लिखो फटाफट. आई एम गोइंग टू रैप दिस. राइट फास्ट. कंप्लीट हो गया? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम. बिफोर गोइंग टू एंगुलर मोमेंटम, यहां भी सेम बात. एंगुलर वाले टर्म्स समझने के लिए लीनियर वाले टर्म्स का आपको थोड़ा सा समझ होना ज़रूरी है. अगर लीनियर वाले टर्म्स की आपको थोड़ी बहुत भी समझ है तो एंगुलर वाले टर्म्स आप इजीली समझ सकते हो. और अगर आपको लीनियर मोशन ही नहीं पता है तो एंगुलर वाले टर्म्स समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है. तो चलो बात करते हैं सबसे पहले लीनियर मोमेंटम की. किसकी? लीनियर मोमेंटम. हेडिंग डालेंगे आप. हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी in terms of moment of inertia. एंगुलर मोमेंटम बॉडी का फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में. मतलब मैं आपको डायरेक्ट बता दूं बच्चों, आपको जो चीज डिराइव करना है वो ये डिराइव करना है कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा. ये आपको डिराइव करना है. क्या डिराइव करना है? L इक्वल टू आई ओमेगा. लेकिन पहले ये समझते भैया ये एंगुलर मोमेंटम है क्या. So let us understand, but before going to the angular momentum, the first thing which you have to understand is linear momentum. देखो, linear momentum मैं आपको समझाता हूँ. जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, if it is going in motion, if it is in the motion, then there is a property called as linear momentum which a body must have. एक बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है. क्या नाम है उसका? लीनियर मोमेंटम. अच्छा, वैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं लिखूं तो फॉर्मूला बनेगा मास इंटू वेलोसिटी. P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी. दिस इज फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम. लेकिन सर ये लीनियर मोमेंटम होता क्या है? सुनो क्या होता है. मान लेते एक रॉकेट है और इस रॉकेट के अंदर भरा हुआ है बहुत सारा फ्यूल टन्स के फॉर्म में.
टन्स के फैक्टर में इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है। अब हमने यहाँ पे इसको बर्न किया गैसेस को और रॉकेट जा रही है ऊपर। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगी इसके अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है उसका मास कम होता रहेगा। इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग। होगा क्या, जब ये मोशन में आ गई तो मोशन में आने की वजह से बच्चों इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। मैं अभी लीनियर टर्म नहीं यूज करता, इसके पास क्या आ गया, मोमेंटम। अब फ्यूल कम हो रहा है तो फ्यूल कम होने से इसका मास भी कम हो रहा है। अरे इसका टोटल मास कितना होगा, मान लेते हैं m। जैसे जैसे ऊपर जाएगा फ्यूल कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, फाइनली इसका मास कितना हो जाएगा, कम होते 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 मान ली बच गया स्मॉल m। अब क्या होगा, अगर इसका मास कम हो गया तो ड्यू टू इट्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ऐसा होता है, अगर इसका मास कम हो रहा है तो मास कम होने से वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा क्यों, इसको मैथ्स के फॉर्म में समझते हैं। देखो हमारे पास एक थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज अ थ्योरम कि लीनियर मोमेंटम बॉडी का कंजर्व होता है। तो P इक्वल टू mv, ये जो P है ये कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट इसकी वैल्यू है। तो अगर इसको कांस्टेंट रखना है और अगर मैं m को कम करूं तो ऑब्वियसली मुझे v बढ़ाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर m कम होगा तो मुझे v क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज द लीनियर मोमेंटम। यही चीज होती है एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी घूम रही है, एंगुलर वाला टर्म कब आएगा, जब कोई बॉडी रोटेट करेगी। तो मान लेते कोई बॉडी घूम रही है लाइक दिस, बॉडी इज रोटेटिंग, करेक्ट ना। और मान लेते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, कितने से, ओमेगा से। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कम कर दिया। अरे ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा था, मैंने आई कम कर दिया, इनर्शिया। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर हम आई इसका कम करेंगे, इनर्शिया कम कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। और अगर मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया सो इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल गोइंग टू डिक्रीज। आई बढ़ाओगे तो एंगुलर वेलोसिटी कम, आई कम करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहां तो बात समझ में आ गई कि मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो आई कैसे कम करेंगे। अरे आई कैसे कम होगा, मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, तो अभी मेरे पास चीज़ें नहीं है कि मैं आपको करके दिखाऊं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। सपोज एक टेबल है जो फ्रीली घूम सकता है, रोटेट हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्न टेबल, जिसमें आप खड़े होकर इजीली घूम सकते हो, यानी वो टेबल का जो सरफेस है इट कैन इजीली रोटेट। आप क्या करो, आप अपने दोनों हाथों में डंबल ले लो, जस्ट टेक डंबल्स इन योर टू हैंड्स। लेट मी शो यू समथिंग दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ सी हियर, आई एम हैविंग टू डंबल्स इन माई हैंड्स, देर आर टू डंबल्स, एंड लेट अस कंसिडर दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल। यानी वो टेबल ऐसा है कि मैं उस टेबल पे घूम सकता हूँ इजीली, यानी मैं नहीं घूम सकता, वो टेबल का जो सरफेस है इट कैन रोटेट। नाउ जस्ट टेक दिस टू डंबल्स इन योर हैंड एंड होल्ड लाइक दिस। डंबल को आप ऐसे पकड़ो और आपका कोई फ्रेंड वगैरह होगा, उसको आप बोलो क्या वो आपको घुमाए। यानी आप टेबल पे खड़े हो गए, डंबल्स आपके हाथ में है और आपके फ्रेंड को बोलो कि वो आपको घुमाए। तो जब आपका फ्रेंड आपको घुमाएगा तो ऑब्वियसली यू विल बी रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, करेक्ट ना। नाउ व्हाट यू डू इज, आपके हाथ ऐसे थे, आप अपने हैंड्स को अंदर ले लो ऐसे। ऐसा करने से क्या हुआ पता है, आपका आई कम हो गया बच्चों, योर इनर्शिया डिक्रीज्ड। हाउ, समझते हैं यहां पे, सुनो। आपने फॉर्मूला पढ़ा है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is nothing but mass into distance का स्क्वायर। अब दोनों डंबल का मास मेरे हाथ में है, तो मास ऑफ डंबल तो मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं डिस्टेंस कम कर सकता हूं। मैं खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन हूं और मैंने उसका डंबल को अपने एक्सिस के करीब लाकर मैंने डिस्टेंस कम कर दिया। डिस्टेंस कम कर दिया तो मेरा इनर्शिया कम हो गया। Now since moment of inertia decreases according to law of conservation of angular momentum,
एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। आप देखेंगे कि जब मैं इसको ऐसा करीब लाऊंगा और मेरा इनर्शिया कम होगा, मेरी जो घूमने की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी विदाउट पुशिंग। यस, फिर से एक बार समझ लो। आप टर्न टेबल पे खड़े हो गए, दोनों हाथ में आपने डंबल लिया, आपको बाहर किसी ने घुमाया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, आप घूमने लगे, मान लेते हैं 2 रेडियन पर सेकंड से, आपने अपने हाथ को अंदर ले लिया तो आप देखेंगे आपकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। वाई? बिकॉज आपका इनर्शिया कम हो गया। इनर्शिया की कमी को मेंटेन करने के लिए ओमेगा बढ़ जाएगा। उसी तरह फिर से अपने हाथ को बाहर ले लो, अब क्या होगा? जैसे आपने अपने हाथ को बाहर लिया, योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई is increased and since I is increased, so to balance this increment angular velocity omega will decrease। क्लियर है इतना? तो ये सब हम लोगों ने क्यों किया इतना सारा? बिकॉज हमें आपको समझाना था कि ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमेशा अपने आप को कांस्टेंट रखना चाहेगा, कंजर्व रखना चाहेगा। अगर कोई क्वांटिटी कम होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए वो दूसरी क्वांटिटी को बढ़ा देगा ताकि खुद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। वो बेसिक में पहली चीज है लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपके लिए नया नहीं है, आप जानते हो ना? ओके। उसके बाद लीनियर मोमेंटम मोमेंटम p इज मास इनटू वेलोसिटी, ये ऑलरेडी नो। एक फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का और है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस p। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस p। इसको आप लिख सकते हो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। सर साइन थीटा कहां से आया? बीच में क्रॉस साइन है इसलिए साइन थीटा आया। यू कैन राइट आर पी साइन थीटा। 3 बेसिक फॉर्मूला याद हो गए पक्का। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला ये भी याद कर लो, ये भी अंदर यूज होगा। I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर इज फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। नाउ कम लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन। सपोज दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगेन ये एक्सिस मैंने बनाया ऐसे है, लेकिन आप यूं समझ के चलिए कि एक्सिस ऐसी है, ऐसे। Now let's say this is mass m1, this is mass m2, here it is mass m3, here it is mass mn। मतलब we are supposing that this body is made up of n number of masses m1 m2 m3 mn। बहुत सारे मासेस से बनी हुई है, मास m1 m2 m3, और ये बॉडी घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब ऑब्वियसली देख सकते हो अगर एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है मतलब डायरेक्शन ये रहेगा। अगर ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी तो क्या होगा? जस्ट लुक ओवर हियर, दिस मास इज गोइंग लाइक दिस विथ वेलोसिटी v1, दिस मास गोइंग लाइक दिस विथ वेलोसिटी v2, दिस मास गोइंग लाइक दिस विथ वेलोसिटी v3। कंडीशन, दिस v1 v2 v3 आर लीनियर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटीज है? लीनियर। और ये जाएगा vn से, सही है? ओके। सो आप यहां पे लिखेंगे कंसिडर अ बॉडी विच इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ masses m1 m2 m3 and these masses m1 m2 m3 are at a distance of r1 r2 r3 and rn from the axis of rotation। ये लिखना जरूरी है। नाउ कम हो गया, क्या करना है इसमें? आपको लिखना है, क्या लिखना है? सुनो यहां पे, द linear velocities of masses v1 is equal to r1 into omega। अरे v इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला यूज किया तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा। ओमेगा के साथ 1 क्यों नहीं लगा? क्योंकि ओमेगा सबका कांस्टेंट है। उसके बाद v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा, अप टू vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। v का काम खत्म। अब फाइंड करते p। द लीनियर मोमेंटम ऑफ मासेस या पार्टिकल लिख सकते हो आप, p1 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी m1 v1। m1 को तो एज इट इज रखो, v1 की जगह क्या रख सकते हैं हम? r1 ओमेगा। उसी तरह p2 इज m2 v2 इज m2 r2 ओमेगा।
P3 is m3v3 which is equal to m3 into r3 ओमेगा, सही है, ओके। लीनियर मोमेंटम का काम खत्म। अब क्या कौन आता है, एंगुलर मोमेंटम L, L is equal to what, rp sin theta, correct। now the angular momentum of masses या पार्टिकल लिख सकते हो आप, फॉर्मूला है r क्रॉस p, मतलब rp sin थीटा, करेक्ट ना। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस मतलब थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। कहाँ करूँ, यहाँ करते हैं, चलो मैं आपको करके बताता हूँ एक चीज़। मैं अगर ऐसा लिखूँ L इज इक्वल टू rp sin थीटा, सर व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन r एंड p, थीटा इज एंगल बिटवीन r एंड p। अगर मैं L1 लिखूँ तो L1 will be R1 P1 sin theta. What is angle between R and P? See, this is the direction of P. This will be the direction of P. P1 will be in this direction. तो P1 और R1 एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90। तो sin थीटा, थीटा की जगह क्या जाएगा 90, एंड sin 90 कितना होता है, R1 P1 sin 90। What is sin 90? Sin 90 is 1. You will be getting as R1 P1. So L1 will be equal to R1 P1, R1 as it is, P1 की जगह उसकी वैल्यू रख दो, P1 की जगह उसकी वैल्यू M1 R1 इंटू ओमेगा। अब देखो R1 R1 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, R1 का स्क्वायर, एंड व्हाट यू आर गेटिंग एज M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। उसी तरह L2 लिखा जा सकता है R2 इंटू P2 R1 इंटू R2 into m2 into r2 into omega, which gives you m2 r2 square omega. Very simple. Similarly, L3 can be written as r3 p3, which is giving you r3 m3 r3 omega m3 r3 square into omega. Correct? उसी तरह अगर आप जाते रहेंगे तो लास्ट में आ जाएगा ln, एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल। nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू rn pn rn, pn की जगह क्या लिख सकते हैं, pn की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो, mn rn ओमेगा, mn rn और ओमेगा। अगेन ये rn मल्टीप्लाई होके बन जाएगा mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, अब हम लोग स्टेप लिखेंगे दैट द सम ऑफ ऑल एंगुलर मोमेंटम, लेट्स से इट इज L, which will be equal to L1 plus L2 plus L3 plus Ln। ये सारी वैल्यूज L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू, L3 की वैल्यू, Ln की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे क्या बनता है। एक काम करो, ये वाला पार्ट साइड में कहीं कॉपी करो, उसको रब करता हूँ मैं, और मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ लिखने के लिए। तो आई एम गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज। सी हियर, L1 की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे हम M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं कॉमन। देखो ये जो ओमेगा 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 है, ये सब में से क्या कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा M1 R1 स्क्वायर, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर अप टू Mn Rn स्क्वायर। ये ब्रैकेट में लिखो, ओमेगा को बाहर कांस्टेंट लिख लो। अब देखो ये क्या बन गया, बहुत सिंपल, क्या बन गया, ये बन गया सबमिशन I इक्वल टू 1 to n MI RI स्क्वायर। हम कर चुके इससे पहले, ब्रैकेट वाला टर्म ये बन गया, बाहर ओमेगा एज इट इज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ
इनर्शिया, दिस इज माई आई, दिस इज ओमेगा, लेफ्ट साइड में क्या चलते हुए आ रहा है, एल, सो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, खत्म। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, अगेन ये वेक्टर क्वांटिटी है, एल पे और ओमेगा पे बाहर आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। हमारा क्या मोटिव था, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड कर लिया हमने, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना आप, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमेशा काम आएगा न्यूमेरिकल करते हुए। तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। व्हाट वी हैव स्टडीड, पहले एक काम करो, पॉज करो स्क्रीन को पॉज करो और इतना पार्ट कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो समराइज कर लेते हैं। समराइज क्या करेंगे, हमने सबसे पहले पढ़ा था पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने एक बॉडी लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया और उसको यूज करके हम लोगों ने एक एग्जांपल भी हमने देखा। आपकी नोटबुक में आपको उसका स्टेटमेंट, उसका डेरिवेशन, उसका एप्लीकेशन लिखना है। उसके बाद हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम किया, उसका स्टेटमेंट, उसका डेरिवेशन, उसका एप्लीकेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरा डेरिवेशन है। देखो ये दिखने में बहुत बड़ा डेरिवेशन दिख रहा है आपको, अरे कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लीनियर वेलोसिटी v लेना है। सुनो यहाँ पे, सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी v लेना है, उसके बाद आपको लेना है इसका लीनियर मोमेंटम p, उसके बाद आपको इसका लेना है एंगुलर मोमेंटम l, VPL याद रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म, जस्ट यू हैव टू डू एज VPL। पहले V फाइंड करो r ओमेगा, फिर P फाइंड करो मास इनटू वेलोसिटी, फिर L फाइंड करो, जो आपको L मिलेगा I ओमेगा। यू जस्ट हैव टू डू VPL, नथिंग एल्स। पूरा डेरिवेशन इसी में आ जाएगा आपका, समझ गए आप। तो प्लीज आज आपके लेक्चर में जो भी कराया गया आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो दो थ्योरम और एक ये वाला डेरिवेशन विद इट्स एक्सप्रेशन, सुपर इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले के हिसाब से भी, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी, कंपटीटिव एग्जाम के हिसाब से भी। स्क्रीन को पॉज करो, ये सब कॉपी करो और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगेन 3 टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, एक है हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन है और एक है प्योर रोलिंग, दैट इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग इन द कमिंग लेक्चर्स। सो आज के लेक्चर में इतना बस, इसको एंजॉय करो। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, प्लीज़ स्टडी, बाय बाय।